Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, today we'll be starting with a new topic that is in class 12th, our first chapter, that is sexual reproduction in flowering plants. As you must have seen, I've already posted two videos which were briefly explaining the concept of some few important topics that are present in this chapter. Okay? लेकिन that is the video about concept explanation. Right now, I also want to bring a session on the same topic what regarding NCERT has to say. ठीक है? Because at last the questions are formed from the lines of NCERT that come in your NEET exam, right? तो इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन कवर करेंगे सिमिलरली उसी तरह जैसे हमने ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन को किया था. ठीक है, सो लेट्स जस्ट बिगिन. आप देख सकते हैं द टॉपिक इज 1.2.1 दैट इज स्टेमन माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन एंड एनसीईआरटी पेज रेफरेंसेस पेज नंबर 5 to 6. Okay, so I've picked up the lines from there and I make sure that you clearly understand the meaning of lines as well. So this is the first diagram which is given in the NCERT. That is a typical stamen. You see this, we draw such type of structure like this, representing anther and filament, and we together call it as stamen, calling it as the male reproductive part. तो ये हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली विद द हेल्प ऑफ द फ्लावर, दैट्स देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो फ्लावर के अंदर वी हैव बोथ मेल पार्ट एज वेल एज फीमेल पार्ट इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल केसेस जहां पे दोनों जेंडर्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं. एंड मेल जेंडर इज स्टेमन. ठीक है जी, स्टेमन के दो पार्ट्स हैं, दैट्स एंथर एंड फिलामेंट. दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग जो हम अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़कर आते हैं. नाउ हियर वी विल डिस्कस कि इस एंथर के अंदर आखिर है क्या, what is there inside it. So if you open the anther, you will see there are 4 spaces like this. There are 4 spaces. This anther is basically bilobed. Okay, each lobe will open into 2 parts. So if I talk, see, if I divide it like this is the structure or the part 1 lobe and this is the other lobe. Okay, this is the one lobe of anther and this is the second lobe of anther. That is why we call anther as a bilobed structure, right? And inside these lobes we have 2 more structures. They are known as the theca. 2 theca, the first and the second. Correct. These 2 theca are separated by grooves, by longitudinal grooves. तो ये अच्छे से सेपरेटेड होते हैं एंड देन इनके अंदर डेवलप होते हैं पोलन ग्रेन्स. कैसे, वो हम इसमें पढ़ेंगे. सो स्टार्टिंग ऑफ with the first line, that is, so it's written here like figure 1.2a जो हमने इससे पहले देखा, it shows the 2 parts of typical stamen. That's what I told you, 2 parts of our typical stamen, that is this, our bilobed anther and our filament. So the long slender stalk, लंबी stalk जिसे हम क्या कहते हैं, filament, and the terminal generally bilobed structure called as anther. 2 लोब वाला टर्मिनल स्ट्रक्चर जिसपे ये एंड हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एंथर. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. The proximal end of the filament is attached to the thalamus or petal of the flower. अब वो जो हमारा फिलामेंट का एंड है वो या तो फ्लावर के वो नीचे वाले पोर्शन जहां से वो बड़े बड़े पेटल्स राइज होते हैं जिसको हम थैलेमस कहते हैं वहां पे अटैच्ड होता है, नहीं तो पेटल्स पर अटैच्ड होता है. ठीक है. The number and length of stamens are variable in flower of different species. हर फ्लावर जो डिफरेंट स्पीशीज के सबके डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं, तो सब में कितने स्टेमन है और वो कितने लंबे हैं वो वेरी करता है, सब में सेम नहीं रहता. ठीक है जी. सो हमने सीखा कि जो हमारा स्टेमन है उसके 2 पार्ट्स हैं, बाइलोब्ड एंथर और लंबी स्टॉक जिसे हम फिलामेंट कहते हैं. देन हमने सीखा
कि फिलामेंट का जो नीचे वाला एंड है किसको अटैच्ड है, थैलेमस को, जहां से फ्लावर बेसिकली ओरिजिनेट कर रहा है, ठीक है, या फिर पेटल्स को, जो वो लंबी लंबी उसकी कलरफुल पेटल्स होती है. देन a typical angiosperm anther is bilobed, which we've already studied, with each lobe having two theca. ये चीज अब पढ़ने की है, ठीक है. हर बायलोब में खाली स्पेसेस हैं और वो स्पेसेस क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव से सेपरेटेड है. जैसे मैं आपको बताऊं, ये हमारा बायलोब्ड एंथर है, ठीक है. मैं अगर बोलूं दिस इज सेपरेटेड, दिस पोर्शन इज वन लोब एंड दिस पोर्शन इज आवर सेकेंड लोब. अब इन लोब्स में एक खाली स्पेस ये, एक खाली स्पेस ये, जिसे हम बोल रहे हैं थीका. थीका, थीका, ठीक है जी. सो ईच लोब, एक लोब में दो थीका, सो दैट इज डायथीकस. ऑल्सो these theca are separated by longitudinal grooves. ऐसे लंबे लंबे longitudinal grooves हैं जो इनको सेपरेट कर रहे हैं. इकट्ठे नहीं है, ये चार पोर्शंस बन गए इन शॉर्ट, 1 2 3 4, ठीक है जी. सो लंबे लंबे ग्रूव्स हैं जो इन थीका को सेपरेट कर रहे हैं. अब आप नेक्स्ट पढ़ोगे कि ये टेट्रा स्ट्रक्चर बनेगा क्योंकि ये सेपरेटेड है, ठीक है. The bilobed nature of anther is very distinct in the transverse section of anther. Obvious सी बात है. अब नॉर्मली तो हमें एंथर ऐसे ही दिख रहा था सिंपल, लेकिन जब हमने उसका ट्रांसवर्स सेक्शन में उसको खोला तो हमें उसके अंदर दो थीका दिखे जो कि प्रॉपरली ग्रूव से सेपरेटेड थे. तो ट्रांसवर्स सेक्शन में हमारा एंथर कुछ डिफरेंट दिख रहा था. एंथर is a four-sided tetragonal structure. मैंने कहा ना कि धीरे धीरे they will progress into a statement कि जो एंथर है उसके अंदर चार स्पेसेस हो गए. So it has become four-sided tetragonal structure consisting of four microsporangia located at the corner of two in each lobe. मतलब like this was our lobe, correct? ये सेपरेटेड हो गए प्रॉपरली. अब इसके अंदर हमारे हैं प्रॉपर टेट्रागनल चार स्ट्रक्चर जिनका हम नाम ले रहे हैं एंड वी आर कॉलिंग देम एज माइक्रोस्पोरेंजिया, जो कॉर्नर में लोकेटेड है हर लोब के. तो टोटल कितने हो गए, चार. इसलिए हमने एंथर को कैसा फिगर बोला, फोर साइडेड टेट्रागनल स्ट्रक्चर. तो समझ गए कि क्यों ट्रांसवर्स सेक्शन में ये फोर पार्ट्स का हमें दिखाई देता है. नेक्स्ट, द माइक्रोस्पोरेंजिया जो वो अंदर है, दे डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक्स. तो मतलब जो पोलन ग्रेन्स एंथर के अंदर बनने वाले हैं वो उन्हीं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे. सो दैट इज व्हाई हमने माइक्रोस्पोरेंजिया का दूसरा नाम क्या रखा, we kept its second name as pollen sac. They extend longitudinally all through the length of anther. वो एंथर के पूरे अराउंड स्प्रेड कर जाते हैं and are packed with the pollen grains. और धीरे धीरे किससे पैक हो जाते हैं, पोलन ग्रेन से. तो ये ही देखेंगे हम कि वो पोलन ग्रेन से एक्चुअली पैक होते कैसे. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. लेट्स सी कि उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है. अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियरली सर्कुलर इन आउटलाइन. हमने अभी देखा कि वो सर्कुलर इन आउटलाइन था. नेक्स्ट, दिस इज सराउंडेड बाय फोर वॉल लेयर्स. तो जो वो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है ना यार, वो फोर वॉल लेयर से बना हुआ है. लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कैसे. फॉर एग्जाम्पल दैट इज आवर माइक्रोस्पोरेंजियम. तो इस माइक्रोस्पोरेंजियम की हो गई फोर वॉल्स.
1, 2, 4 wall layers, that is epidermis, the outermost, उसके अंदर वाली एंडोथीसियम, देन 2-3 लेयर्स जिन्हें हम मिडल लेयर्स बोलते हैं, एंड देन फाइनली द इनर लेयर टेपिटम। तो मैं एक बार ही बना देती हूं। ठीक है जी, तो ये जो हमने पर्पल कलर की बनाई है, दिस इज द एपिडर्मिस, उसके अंदर रेड कलर वाली है एंडोथीकम, देन येलो लेयर्स ऑफ मिडल लेयर्स, एंड देन फाइनली जो अंदर ग्रीन कलर की हमने वॉल बनाई है, दैट इज द टेपिटम। तो ये जो वो हमने 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बनाए थे, हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ऐसे 4 वॉल स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ व्हाई सो? The outer 3 wall layers, that is epidermis, endothelium and the middle layers, they help perform the function of protection and help in dehiscence of anther। मतलब एंथर जब ऐसे खुलता है और उसके अंदर से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं और उसको तब तक प्रोटेक्ट करके रखने के लिए इन 3 वॉल्स का मेजर फंक्शन रहता है। द इनर मोस्ट जो टेपिटम है, अब ये पोलन ग्रेन्स जो अंदर बन रहे हैं उनको खाना भी तो चाहिए, ये पोलन सैक्स के अंदर जो भी कुछ डेवलपमेंट हो रही है उसके लिए भी नरिशमेंट चाहिए। सो इट कंसिस्ट ऑफ डेंस साइटोप्लाज्म एंड हैज मोर देन 1 न्यूक्लियस सप्लाइंग एंड नरिशिंग द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स के खाने के लिए, उसकी नरिशमेंट के लिए ये टेपिटम है, जिसके अंदर अच्छा खासा साइटोप्लाज्म है ताकि फूड बन सके, एंड इट ऑल्सो हैज मोर देन 1 न्यूक्लियस ताकि फंक्शनिंग अच्छे से परफॉर्म हो सके। सो इतना हमें समझ में आ गया कि एंथर 4 स्ट्रक्चर बन जाते हैं, एंड वो ईच माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर अब क्या बन रहे हैं? पोलन ग्रेन्स। तो हर माइक्रोस्पोरेंजियम 4 वॉल से स्पेशलाइज्ड है ताकि पोलन ग्रेन रिलीज होने में हेल्प हो। ठीक है जी। सो नेक्स्ट, जस्ट अ सेकेंड, yes, look at the diagram here, see 4 walls देखिए, ये हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम है, these are our माइक्रोस्पोरेंजियम्स, और इसके अराउंड ये हमारी 4 वॉल लेयर्स है। तो जगह अगर हम इसे जूम करके देख रहे हैं, सो दिस इज द आउटर वन एपिडर्मिस, देन एंडोथीसियम, देन 2-3 मिडल लेयर्स, और इनसाइड में है टेपिटम। नाउ देयर इज अ न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल, एंड हियर आल्सो इट इज रिटन स्पोरोजिनस टिश्यू। तो in the next slide, let's learn about these 2 words. Next, when the anther is young, जब anther young होता है, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of microsporangium. हमने ये तो पढ़ लिया कि माइक्रोस्पोरेंजियम की 4 वॉल्स हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है? उसके अंदर है खूब सारे नए नए सेल्स जो मिलके क्या बना रहे हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। अब सिंस वो पोलन ग्रेन्स बनाएंगे दैट आर काइंड ऑफ स्पोर्स, तो वो हमने बोल दिया स्पोरोजिनस टिश्यू। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में स्पोरोजिनस टिश्यू। नाउ लेट्स सी कि वो सेल्स आगे पोलन ग्रेन कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वो पोलन ग्रेन्स का बनना, दे आर द टाइप ऑफ स्पोर्स, तो इसीलिए उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं माइक्रो, बहुत छोटे, स्पोर, स्पोर जैसे स्ट्रक्चर, जेनेसिस बनते हैं। तो छोटे छोटे स्पोर्स जो उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं, उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो एज द एंथर डेवलप, जैसे जैसे एंथर डेवलप होता है, the cells of the sporogenous tissue undergoes meiotic divisions to form microspore tetrads. I have already explained this in a short video which I have posted before, but just a quick revision I'll give here. ठीक है, डिटेल देखना होगा तो उस वीडियो को एक बार ही देखिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है। स्पोरोजिनस टिश्यू मतलब उसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, वो सेल्स को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल।
मदर सेल क्यों? क्योंकि उनसे बनेंगे अब बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्पोर्स। तो these माइक्रोस्पोर मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस। हमने छोटे होते ही पढ़ा है 9th क्लास में, 2 टाइप्स ऑफ सेल डिविजन, माइटोसिस, मियोसिस। विच वन इज हेल्पफुल फॉर रिप्रोडक्शन? मियोसिस, जहां पे हमारा डिप्लॉइड क्रोमोसोम कितना हो जाता है? हेप्लॉइड, ताकि वो दूसरे जेंडर के गेमीट के साथ फ्यूज करके जाइगोट बना सके। सो सेम कॉन्सेप्ट विल बी फॉलोड हियर। वो पोलन ग्रेन्स हमें कैसे चाहिए होंगे? हेप्लॉइड, ताकि वो फ्यूचर में जाके ओव्यूल के साथ जब मिलेंगे, वहां पे फीमेल गेमीट होगा तो उसके साथ मिलके वो जाइगोट बना सके। बट उसके लिए उसका हेप्लॉइड होना बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर होती है मियोसिस, जिसके बाद बनता है माइक्रोस्पोर। एंड दीज माइक्रोस्पोर, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं which further develop into pollen grains। ठीक है जी, तो वो यहां यही लिखा है, as the anther develops the cells of sporogenous tissue undergoes meiotic divisions to forms microspore tetrad। टेट्राड इसलिए क्योंकि एक मायोटिक डिवीजन से 4 स्पोर्स बनते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, as each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrad, so हम एक पोटेंशियल पोलन या फिर उसका नाम माइक्रोस्पोर मदर सेल जो अंडरगो करता है मियोसिस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसी प्रोसेस को इन्होंने प्रॉपर टर्मिनोलॉजी के साथ यूज किया है, दैट हर सेल स्पोरोजेनस टिश्यू का पोटेंशियल पोलन है जो आगे जाके पोलन ग्रेन बन सकता है। तो इसीलिए उसे हम क्या कह रहे हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। वो माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं किस प्रोसेस से? मियोसिस से। तो इसीलिए उस पूरी टर्मिनोलॉजी को हम क्या नाम दे रहे हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट, द माइक्रोस्पोर्स दैट आर फॉर्म्ड, 4 में जो बने हैं, दे आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। तो इसीलिए हम उन्हें बोल रहे हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। द लाइंस आर रिपीटेड, दीज आर द एग्जैक्ट लाइंस ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, वो बार बार लिखी हैं, आप फर्स्ट टाइम उन्हें रीड करोगे तो यू विल गेट कंफ्यूज दैट व्हाट आर दे ट्राइंग टू से। लेकिन सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट वीडियो देखिए जिसमें मैंने शॉर्ट में समझाया कि एक्चुअली हो क्या रहा है, देन वॉच दिस वीडियो जिसमें आप प्रॉपरली समझ पाए कि एनसीईआरटी की लाइंस कहना क्या चाह रही है। ठीक है, नेक्स्ट, एंथर मैच्योर। अब एंथर हमारा मैच्योर हो गया, खूब सारे पोलन ग्रेन उसने अपने अंदर बना लिए, दे डिहाइड्रेट और उनके अंदर से पानी सारा निकल गया। नाउ दीज माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट, वो आप एक दूसरे से अलग और बाहर निकल जाएंगे एज पोलन ग्रेन्स, जो उड़ेंगे और फीमेल पार्ट तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट, इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम several thousands of microspores or pollen grains are formed which are released with the dehiscence of anther। तो यार ये तो हमने देखा ही है कि उसके अंदर कितने सारा सेल्स थे, तभी तो वो स्पोरोजेनस टिश्यू बना रहा था। तो कितने सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे? हर माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन बन रहे हैं। तो इन शॉर्ट जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है वो फ्यूचर पोलन ग्रेन से भरा हुआ है। ठीक है जी, नेक्स्ट, सी द डायग्राम। Like this, these pollens are released। ये एंथर की वॉल टूट गई, दिस इज नोन एज dehiscence of anther। ठीक है, और फाइनली ये सारे पोलन ग्रेन्स बाहर निकल जाते हैं। करेक्ट, एंड दैट इज ऑल। सो इससे हमने समझा कि कैसे हमारे एंथर में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि वो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसे है और वो फीमेल के अंदर जाके कैसे जर्मिनेट करता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माय वीडियोस फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।